So we will just try to finish mainly very interesting topic, that is wave particle duality. Okay. So what we have to do, we will just discuss here, and then we will step by step, we will just try to understand all this thing. Okay. So we have to just finish first particle nature of light. Particle nature of light. And in this topic, we have to finish two very interesting experiment. That is, first is photoelectric effect. First is photoelectric effect. And second is all about Compton effect. And then second topic we are just going to cover is wave nature of particle. Nature of particle. In this particular topic, we are just going to understand de Broglie wavelength, we will just try to go for de Broglie wavelength, and then we will also try to understand one experiment, that is Davison-Germer effect. And then we will go for the third part. In this third part, we will just try to understand uncertainty principle. Uncertainty principle and Bohr-Sommerfeld theory. Bohr-Sommerfeld theory. And here we will also try to go for one topic is there, group velocity and phase velocity. Okay. So this part is covered into modern physics. I think you have already done your nuclear physics or वो चल रहा होगा, है ना? So this is parallelly we are just trying to cover all this thing. Okay. So, and from this topic, at least you have 3 questions to 4 questions each and every year. And these questions are very simple, and that will also very conceptual base. So these are very conceptual, not very mathematical. You have to just remember the formula and concept, and then you can give the answer to each and every problem. Okay. So basically we are just try to understand all the thing before quantum mechanics. Before quantum mechanics arrived, before quantum mechanics is fully constructed, before that there are a lot of experiments which is very interesting and which will open the door for quantum mechanics. Okay. अभी तक अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. If you want to ask something, you can ask. सर आज हमारी फर्स्ट क्लास है ना? Yes, आज जो भी है आज फर्स्ट आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. ठीक है सर. Okay. So now let me ask you, before going to next this today we will just try to construct the theory of photoelectric effect, and we will try to understand whether light is particle or wave. So this is very important question, we have to give the answer. Okay. So देखते हैं ये क्या है और इसका हम आंसर क्या दे पाते हैं. So now what is light? Can anybody tell me? Light क्या है जरा बताओगे? Light is a stream of photons. Stream of photons.
अगर मैं कहूं लाइट वेव है तो क्या ये गलत होगा? नहीं सर, नहीं गलत नहीं होगा गलत क्योंकि नहीं होगा, लाइट इज ऑल्सो वेव. ओके, या सो बिफोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं बात कर रहा हूं बिफोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, Maxwell give the very nice concept about the light, and what he say before photoelectric effect. So now we are not discussing photoelectric effect. Before that, there was a concept that light is EM wave. What is EM wave? Electromagnetic wave. Okay, so how you will generate electromagnetic wave? Suppose you have charged particle, and when you will give the charge particle, you will just accelerate this particular charge particle. This charge particle will radiate, and this radiation is identified as what? Light. Are you getting my point? जो भी चार्ज पार्टिकल है उसे अगर आप एक्सेलरेट करोगे तो उससे जो रेडिएशन डेवलप होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज रेडिएट, एंड दैट रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड एज लाइट. ओके, नाउ सो मैक्सवेल ने ये समझने की कोशिश की that light is nothing but electromagnetic wave. So if it is wave, something have to be oscillate. So what is oscillating here? So electric field is going to oscillate. So electromagnetic theory में आप पढ़ोगे, there is electric field and magnetic field, both are propagating in one particular direction. Electric field and magnetic field are perpendicular to each other, and both are oscillating in the one particular plane. So you can assume that electric field is something oscillating like this. Okay, just like a wave. So this is nothing but the profile of what? Electric field. So these all are electric field. Okay, are you getting my point? Okay, so according to Maxwell, light is nothing but electromagnetic wave where electric field and magnetic field is oscillating. So Maxwell also proved that if it is electromagnetic field, then obviously this can be written as a wave equation, and this will be, let's say, written as E naught sin kx minus omega t. लिख सकते हैं ना? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो वेव का इक्वेशन क्या होगा? दैट विल बी ऑलवेज अ साइन और कॉस. इसके टर्म में आप लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इट्स इनिशियल कंडीशन. एंड हियर Maxwell explained that energy of electromagnetic wave or energy density or energy of electromagnetic wave is proportional to, so I am using U for the energy, is proportional to what? Amplitude square, and this is nothing but the average value of energy. So average value of energy किसका proportional है? Amplitude square का proportional है, and intensity is also proportional to amplitude square. This is my classical thing. ये हम लोगों का क्या है? क्लासिकल रिजल्ट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्योरी के थ्रू आपको बताया गया है. ओके, सो दिस इज बेसिकली क्लासिकल रिजल्ट. व्हाट इज दिस थिंग? दिस थिंग इज टिपिकली क्लासिकल रिजल्ट जो हमारे पास है. सो and obviously this intensity is also proportional to E square. E is nothing but the amplitude square, and you can also use this concept to define the Young's double slit experiment. सुने हो Young double slit experiment को? Yes, sir. What is Young double slit experiment में क्या होता है? You have two wave, one is let's say E1 cos kx, और फिर दूसरा वेव आपका आता है लेट्स से E2 cos kx प्लस फाई, और इन दोनों के सुपरपोजिशन से आपको इंटेंसिटी पैटर्न मिलता है. याद है ना? आपने पढ़ा होगा, +2 में पढ़ा होगा, या फिर आगे जाकर के वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे. सो व्हाट यू हैव E इज इक्वल टू, सो अगर इंटेंसिटी पैटर्न देखेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, व्हाट इज दिस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? देयर आर टू स्लिट, and from this two slit the light is passing through it, and you have this sort of pattern, है ना? I am just जी सर. ऐसा पैटर्न आपको मिलता है,
and this is what, let's say electric field E1 and this is what, electric field E2, इन दोनों का सुपरपोजिशन है, and this E is equal to nothing but E1 plus E2, and this is electromagnetic wave E1, this is electromagnetic wave E2. और अगर आप इसके इंटेंसिटी पैटर्न को लिखोगे, so what will be intensity pattern? The intensity pattern is I1 I1 square plus I2 plus 2 time root under I1 root under I2 and cos delta. याद है कुछ ऐसा? And what is I1? What is I1? I1 is nothing but E1 square, है ना? And that is amplitude of first wave. ये first wave का amplitude है ना? So this is nothing but E1 square. And what is the second thing? Second thing is all about E2 square. And now you can write 2 time E1, E2 and cos delta. और cos delta, इसको मैं यहाँ पर delta लिख दे रहा हूँ. What is delta? Is the phase difference, है ना? दोनों light pulse के बीच, light wave जो जा रहा है, उन दोनों के बीच का phase difference है, जिसको कि आप delta के through दिखाते हो. So you can just use this thing in optics. So यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ because before photoelectric effect, we have a full belief in this theory, और हम ये समझ रहे थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी एनर्जी और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के ऊपर. यहां देख रहे हो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एंड दिस ऑल आर एम्पलीट्यूड, and this is nothing but the intensity. Okay, so this is the very famous experiment which will prove light is nothing but what? Electromagnetic wave. यहां तक क्लियर है ये? जी सर. ओके, नाउ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट को जरा हम समझते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं. दिस एक्सपेरिमेंट इज व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अच्छा ये बताओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो. सपोज दिस इज मेटल प्लेट, ये हमारा मेटल प्लेट है, और मेटल प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? सो देयर आर इलेक्ट्रॉन एंड वी एज्यूम दे आर बाउंड ऑन द सरफेस, है ना? सरफेस के वाले इलेक्ट्रॉन है जो कि बाउंडेड है. एक तरह से बाउंडेड होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह की वैली के अंदर है. ठीक है, इस तरह से कुछ पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है. सो इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे फ्री करना पड़ेगा तो यहां से मैं ऊपर ले जाऊंगा ना? यस. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. अगर मैं इस एनर्जी को दूंगा और वो इस पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम कर ले तो ऊपर आ जाएगा. यस, ये चीज समझ में आ रहा है? यस सर. ये सर. बोलो यस, ये समझ में आ रहा है? यस सर. ये सर. हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से आपके मेटल के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए. एंड दीज आर वेरी शैलो थिंग, बहुत ही शैलो है, जो ये बहुत ही डीप वेल नहीं है, बहुत ही शैलो वेल है. नाउ अब अगर इसके ऊपर लाइट वेव आएगा, व्हाट विल हैपन? लाइट वेव विल कम हियर. अब वेव है, सो व्हाट विल हैपन? So there are lot of electrons. So these electron will absorb the energy, है ना? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लाइट वेव आ रहा है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, है ना? So they will what? Absorb the energy. And once they will absorb the energy, then it will take time. Are you getting my point or not? समझने की कोशिश करो. ये जो लाइट है ये तो कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग? पहले कुछ यूनिट एनर्जी मिला, जैसे कि आप समझने की कोशिश करो. सपोज ये वेल है, इस वेल को क्रॉस करने के लिए हमें 1 यूनिट की एनर्जी मिल चाहिए. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए. व्हाट वी नीड? वी नीड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. एंड सपोज लाइट इज कमिंग हियर. अगर वेव यहां पर आएगा, देन व्हाट विल हैपन? फर्स्ट इट्स एनर्जी विल बिकम 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
Yes, it will absorb some energy from the light, and after then its energy will become 0.2 electron volt. After some time its energy will become 0.3 electron volt. After some time, धीरे धीरे जितना देर तक आप इसको रखोगे लाइट के अंदर, वैसे वैसे क्या होगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा. Yes, sir. Yes, and after मतलब then maybe its energy is 0.5 electron volt, and after some time its energy is 0.75 electron volt, and so on, and finally its energy will suppose become 1.1 electron volt. And what will happen, this electron will come out this particular thing. Are you getting this particular? क्या आपने इसे समझा? Yes, sir. है ना? फिर तो सर टाइम लैग होगा. एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड. सो अगर ये एक्सपेरिमेंट वेव के साथ किया जाएगा तो फिर क्या होगा, टाइम लगना चाहिए पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट को होने में. जी सर. है ना? क्योंकि वो क्या हुआ, एनर्जी 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.75 इस तरह से धीरे धीरे करके उसको एनर्जी मिल रही है. इट इज जस्ट एब्जॉर्बिंग द एनर्जी इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म. तो इसका पूरा का पूरा टाइम लगना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, कुछ अलग ही बात हो रही थी. व्हाट विल हैपन वेन, सो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन. ये हमारा क्या था, एक्सपेक्टेशन. किस चीज का एक्सपेक्टेशन था? ये कब होता, ये कब हो रहा था, जब लाइट और रेडिएशन, व्हेन रेडिएशन इज वेव, बिकॉज वी एज्यूम दैट रेडिएशन इज वेव. तो हमारे अनुसार ये होना चाहिए था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ रेडिएशन इज वेव तो उसको ऐसा बिहेव करना चाहिए था ना. से यस या नो? यस सर. वेरी गुड. बट व्हाट विल एक्चुअली हैपन, एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली द थिंग इज वेरी सरप्राइजिंग. द थिंग इज दैट when we have given the light to this particular metal, this electron will immediately come out. This electron will immediately come out. There was not any lag. There is not any time lag. ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अपने आप जैसे ही लाइट गिरा इलेक्ट्रॉन अपने आप आ गया, लेकिन हर एक लाइट के साथ नहीं. So what is this experiment going to happen, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और फिर हमें देखते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं. अभी तक समझ में आ रहा है क्या मैं बात कह रहा हूं? Yes, sir. जी सर. Yes, sir. ये वाला जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट वेव नेचर को जस्टिफाई करता है क्या? नहीं करता. नहीं No, sir. करता है. वेरी गुड. अगर वेव होता तो पूरा टाइम लगता ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में? यस सर. लगता. Yes, अब sir. देखो एक्सपेरिमेंट क्या है वो जरा समझो और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है? ओके, लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. एकदम आराम से समझो, सारा चीज समझ में आएगा. और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो हमें समझना है. देखने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन वो उतना आसान है नहीं. एक हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे. हर्ट्ज वाज अ साइंटिस्ट, एंड व्हाट ही डज अ experiment. He just done a experiment. Experiment क्या था? So there is a basically one metal plate and there is a another metal plate. Okay, and in this metal plate what he has done, he just put the battery. So this is negative ना, छोटा वाला को नेगेटिव कहते हैं ना, मुझे याद नहीं है, बताओ नेगेटिव कहते हैं या पॉजिटिव कहते हैं? तो नेगेटिव. नेगेटिव कहते हैं. मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं आता है. ठीक है. और यहाँ एक एमीटर लगा दिया. एमीटर क्या काम करता है? करंट मेजर करते हैं. करंट मेजर करता है. वेरी गुड. और ये यहां से यहां चलाया. ठीक है. नाउ ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो ये वाला भी नेगेटिव होगा ना. ठीक है. और ये वाला भी क्या है, पॉजिटिव होगा. एग्रीड? ओके. यस सर.
और इसे हम लोगों ने क्या किया, एक वैक्यूम चेंबर में रख दिया। वैक्यूम चेंबर में रखने का मतलब है कि कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है। सो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा ना, यस या नो? यस सर। यस हो जाएगा। अब ये बताओ, इस एमीटर में लाइट कब मिलेगी, सॉरी ये एमीटर कब मूव करेगा? जब इसमें करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट में। यस सर। जस्ट हाँ या ना में आंसर देते जाओ, क्योंकि जब तक बताओगे नहीं मैंने आगे नहीं बढ़ूंगा, है ना। ये जो आपका एमीटर है, इस एमीटर में करंट कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन यहां से चल इलेक्ट्रॉन फ्लो करके होगा। यहां पहुंच आ जाए, है ना। जी सर। यस जब इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के यहां पहुंच जाए तो फिर इसके अंदर करंट मिलेगा, ठीक है। वेरी सर। गुड। यस सर। अब देखो क्या हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे मैं एमीटर कह देता हूं। इसे मैं क्या कह देता हूं? एमीटर। और इसे मैं क्या कह देता हूं? कलेक्टर। दिस इज व्हाट? कलेक्टर। और ये थोड़ा सा ओवल शेप का भी है, और यहां पर वोल्टेज है कुछ इस तरह की है। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल just try to give the light of very low frequency and very high intensity. समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई इंटेंसिटी। अब समझने की कोशिश करो। वेरी हाई इंटेंसिटी। लो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? कैसा कलर का लाइट सोच सकते हो? रेड कलर, रेड कलर। है ना। रेड कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है और उसकी इंटेंसिटी क्या है? बहुत हाई है। अब इंटेंसिटी आप कैसे बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो? यू कैन जस्ट पुट द सोर्स इन अ वेरी फोकस्ड मैनर। आर गेटिंग दिस थिंग? सोर्स को बहुत ही फोकस्ड करो और ये बिल्कुल भी इसके नजदीक ला करके रख सकते हो। दूर करोगे, नजदीक करोगे, यू आर जस्ट गिविंग द हाई इंटेंसिटी, है ना। जी सर। व्हाट विल हैपन? देयर वाज नॉट एनी डिफ्लेक्शन। यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। सो देयर इज नॉट एनी चार्ज विच इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड कमिंग टू, इमर्जिंग फ्रॉम हियर एंड कमिंग टू हियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। इंटेंसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी लो है लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, और इंटेंसिटी बढ़ा दिया, और इंटेंसिटी बढ़ा दिया, और इंटेंसिटी मींस क्या है? एम्पलीट्यूड बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। अगर आप वेव नेचर की तरह देखो तो क्या हुआ? एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं वेव की तरह। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। तो जब हमने ये देखा कि भाई लो फ्रीक्वेंसी है लेकिन इंटेंसिटी कितना भी ज्यादा है, देयर इज नॉट एनी करंट फ्लोइंग। यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब हमने रिवर्स किया। हमने क्या किया? हाई फ्रीक्वेंसी लिया, हाई फ्रीक्वेंसी लिया एंड लो इंटेंसिटी लिया। ओके, फ्रीक्वेंसी हमने हाई किया और इंटेंसिटी लो लिया। ओके, इंटेंसिटी लो का मतलब क्या हुआ? अगर हम वेव की तरह इसे देख रहे हैं तो फिर हमारी इंटेंसिटी क्या है? एम्पलीट्यूड बहुत कम है, मींस एनर्जी बहुत कम है ना। जी। लेकिन व्हाट वी हैव सीन दैट इफ इट इज हाई फ्रीक्वेंसी then there is a deflection and the current is flowing. What is happening? इंटेंसिटी लो है, फ्रीक्वेंसी हमने चेंज की, मींस कहने का मतलब है मैंने अब ब्लू कलर ले लिया और बहुत लो इंटेंसिटी लिया। बहुत लो, धुंधला जैसा नहीं होता, बहुत हल्का, जैसे कमरे में यूज करते हैं ब्लू कलर सोने के लिए, याद है? बहुत लो इंटेंसिटी होता है उसका। यस सर। उस तरह का कलर हमने लिया जिससे कि कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड व्हाट वी हैव सीन, देयर इज करंट इनटू दिस पर्टिकुलर, यहां पर करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज दिस? अगर ये वेव होता तो किसमें करंट फ्लो करना चाहिए था? सर हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी में फ्लो करना चाहिए था। और
ऐसा तो हो नहीं रहा है, बिकॉज इंटेंसिटी एंड एनर्जी इज सेम थिंग फॉर द वेव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए हर्ट्ज ने 2 प्लॉट खींचे, एंड इस प्लॉट को क्या कहते हैं? आईवी कर्व। कौन सा कर्व कहते हैं इसे? आईवी IV. कर्व। ठीक है। एंड आईवी कर्व में जब इसे देखा गया तो दिस इज योर आईवी कर्व, करंट वर्सेस वोल्टेज, करंट वर्सेस वोल्टेज का कर्व देखा गया, और फ्रीक्वेंसी को सेम किया गया। व्हाट इज दिस? फ्रीक्वेंसी इज सेम, और इंटेंसिटी को हाई किया गया, है ना, इंटेंसिटी वेरी किया गया। फ्रीक्वेंसी इज सेम एंड इंटेंसिटी वेरी। नाउ what we have seen something like this. This is your intensity I1, this is your intensity I2, this is your intensity I3। और देखा गया कि जब इसे मैं नेगेटिवली कर रहा हूं, एक ऐसा भी पॉइंट आ रहा है जब कोई भी करंट यहां नहीं मिल रहा है। वो कब मिल रहा है? जब इसकी पोलराइजेशन चेंज कर दे रहा है। आर गेटिंग माई पॉइंट? इसकी जब पोलराइजेशन चेंज कर रहे हैं, मींस इसे जब मैं पॉजिटिव कर रहा हूं और इसे नेगेटिव कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं यहां पर कोई भी पोटेंशियल हमें नहीं मिल रहा है। आर गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes. अब ये देखो, और ये क्या है? दिस आर द फोटो करंट। ये क्या है? ये करंट है, और जो करंट इसमें आ रहा है उसे हम फोटो करंट कहते हैं। लेकिन अभी जस्ट आप करंट समझने की कोशिश करो। फ्रीक्वेंसी सेम था और ये हमारा मिल गया। ठीक है, दिस इज योर थिंग। दूसरा कर्व उन्होंने प्लॉट किया, अगेन इट इज आईवी कर्व। एंड व्हाट इज दिस आईवी कर्व? यहां उन्होंने इंटेंसिटी सेम रखा एंड ही जस्ट चेंज द फ्रीक्वेंसी। उन्होंने क्या चेंज किया? फ्रीक्वेंसी चेंज किया। तो जब फ्रीक्वेंसी उन्होंने चेंज किया, सो दिस इज योर इंटेंसिटी, दिस इज योर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सेम था, फ्रीक्वेंसी अलग था, और इसको मैं कह देता हूं V1 S भी लगा देता हूं अभी के लिए, V2S, V3S, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी था दैट इज ν1, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी था दैट इज ν2, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी था दैट इज ν3। और यहां यह देखा गया ν3 is greater than ν2 is greater than ν1. So these two curve he has plotted. ये दोनों कर्व क्या वेव नेचर को जस्टिफाई करता है? ये दोनों कर्व क्या वेव नेचर को जस्टिफाई करता है? नाउ अब मैं जरा इस नेगेटिव वाले पोटेंशियल को समझाने की कोशिश करता हूं। नेगेटिव पोटेंशियल का क्या मतलब है, समझने की कोशिश करो। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट पॉजिटिव एंड मेक इट नेगेटिव। ठीक है ना? सॉरी, उल्टा कर दो, इसको मैं पॉजिटिव कर रहा हूं, इसे मैं नेगेटिव कर रहा हूं। दिस इज द थिंग। ठीक है, अब लाइट मैंने डाल दिया और हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट मैंने रखी। ओके, सो देयर इज हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, एंड व्हाट विल हैपन? अगर इस केस में है तो ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उसे ये प्लेट तो अपनी तरफ क्या करेगा? इसे, सॉरी, ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला अब क्या हो गया? नेगेटिव, Negative. है ना? तो ये बताओ, ये वाला प्लेट इसे क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा? Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. और ये वाला प्लेट क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा। Yes, sir. तो समझने की कोशिश करो, ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। इस प्लेट, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? Repel करेगा sir. रिपेल करेगा। ये क्या करेगा? Attract करेगा. अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पर जाने का चांस कम होगा या ज्यादा होगा? कम। तो कम होगा. कम होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा? इसका एनर्जी हाई होगा. जिसकी एनर्जी ज्यादा High होगी। होगी। हाँ.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सिंपल सी बात है, यहां से यहां वही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा जो इस पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम कर सके। यस सर आर यू गेटिंग दिस? है ना, ये चीज समझ में आ रहा है? अब इस यहां प्रत्येक से घटक के फिर से समझने की कोशिश करो। यहां पर सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन है, ओके, देयर आर सो मच इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल हैपन? ये इलेक्ट्रॉन यहां गया फिर वापस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया वापस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गया। इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की है? बताओ। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में किसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो पहुंचा या जो वापस आ गया? जो पहुंचा। जो पहुंचा, यस सर है ना। आप सिंपल से ऐसा समझ सकते हो कि आपको कोई धक्का दे रहा है, तो कौन इस धक्के के अगेंस्ट में पहुंचेगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी यस सर या जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी? यस या नो? यस सर सो या फिर ऐसे समझ सकते हो कि एक बैरियर है, इस बैरियर को कौन क्रॉस करेगा? जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। यस या नो? यस सर है ना। तो यहां पर भी एक बैरियर डेवलप हो चुका है, और उस बैरियर को वही इलेक्ट्रॉन यहां पर क्रॉस करेगा, यहां तक पहुंचेगा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। यस। यस सर तो पहला बार हमने कुछ पोटेंशियल रखा Vs1, तो इसमें क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचे, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गए। अब मैं और एनर्जी बढ़ाऊंगा तो कितने पहुंचेंगे? तीनों पहुंचेंगे या कोई एक या दो पहुंचेगा? एक या दो पहुंचेगा, एक या दो बचेगा सर। है ना। करंट घटेगी। करंट घटता जाएगी, है ना, करंट घटता जाएगा। अब आप बताओ, अगर आपकी करंट 0 हो गई, उसका मतलब क्या है? जस्ट पोटेंशियल जस्ट एक यहां से यहां तक पहुंचा, उसके बाद आपने बढ़ाया तो करंट 0 हो गई। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? दोनों की पोटेंशियल नो बराबर है। मीन्स की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच चुकी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से समझो, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला यहां तक पहुंचा, सेकंड वाला भी यहां तक पहुंचा, थर्ड वाला भी यहां तक पहुंचा, फोर्थ वाला वापस चला गया। ठीक है। अब मैंने पोटेंशियल फिर से बढ़ाया, तो 2 पहुंचा और 2 वापस आ गया। करंट घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। बताओ। करंट घटेगा। घटेगा, है ना। अब सिर्फ एक वाला वहां तक पहुंचा, करंट और घटेगा। यस सर अब एक भी नहीं पहुंचा, करंट 0 हो गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? जिस पोटेंशियल पर करंट 0 हो गया। हाँ ये चीज सारे लोगों को समझ में आया नहीं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैन आई से दैट दिस पोटेंशियल is the equivalent to when this potential, for this particular potential, suppose this is your potential Vs, is those potential for which maximum kinetic energy of a particle will come here? यस सर है ना। तो अब आप यहां पर देख रहे हो कि भाई इंटेंसिटी तो आप बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी तो बढ़ा रहे हो, करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या फिर सेम हो रही है फ्रीक्वेंसी सेम होने पर? फिर से सुन देखो, इंटेंसिटी इज चेंजिंग। पहले I1 था, फिर I2 है, फिर I3 है, एंड यू हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। I1 इज लेस देन I2 is less than I3. Are you getting this thing? Now Yes, you sir. can just tell me, if I1, I2, I3 ये तीनों की इंटेंसिटी में I3 की ज्यादा है, तो करंट सबसे ज्यादा किसके थ्रू मिल रहा है? I3 से। I3 से मिल रहा है। देखो सैचुरेशन करंट किस पर मिला? I3 से। यस सर लेकिन इस पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन थी, उसकी वैल्यू कितनी होगी?
0. नहीं नहीं, अच्छा, हाँ, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन थी उसकी वैल्यू कितनी है? Vs। हाँ. नहीं समझ में आ रहा है? सर यहाँ पे जो V है वो तो वोल्टेज है ना? अरे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, E इंटू हाँ, वीएस क्या हाँ. होगा? एनर्जी हो जाएगा। हाँ, हाँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक. मीन्स आप यहां देख रहे हो करंट किसके लिए मैक्सिमम मिल रहा है? I3. I3 के लिए। I3 के लिए. उसके बाद किसके लिए मिल रहा है? I2 के I2. लिए. I2 के लिए। उसके बाद किसके लिए मिल रहा है? I1. I1 के लिए। वेरी गुड। अब आप ये देखो करंट तीनों के लिए किस पोटेंशियल के लिए जीरो हो रहा है? VS. Vs के लिए जीरो हो रहा है। ठीक. सो जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? EVS. EVS। हाँ. Exactly, very good. So maximum kinetic energy of the electron is equivalent to what? EVS. Means अब आप ये बताओ यहां पर से देख करके आपको क्या लग रहा है? काइनेट आपकी एनर्जी ऑफ अ लाइट विल डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी और दिस पर्टिकुलर VS। सब VS. VS के ऊपर VS. है ना? Yes, sir. ओके गुड। अब यहां पर देखो इंटेंसिटी सबकी सेम है। लुक एट हियर, इंटेंसिटी सबकी सेम है ना? मींस करंट सब में सेम मिल रहा है, मैक्सिमम करंट। Yes, sir. यस या नो? अब ये बताओ इसमें किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? 1 VS वाले की या 2 VS वाले की या 3 VS वाले की? तो 1 VS की. 1 PS. 1 VS की कैसे हो जाएगा? ज्यादा कौन है? ये ज्यादा है ना? हाँ. हाँ सर. V3. किसकी ठीक. सबसे ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी? 1 VS तो इतनी ही एनर्जी है। हाँ, 2 हाँ, हाँ. VS ये तो नेगेटिव साइन के लिए दिया हुआ है। दिस इज पॉजिटिव साइन, दिस इज हाँ. नेगेटिव साइन, तो सिर्फ पोलरिटी के लिए दिया है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फॉर दिस 1 VS? कौन सा ज्यादा है? 3 VS ज्यादा है या 2 VS या 1 VS? तो 3 VS. 3 3 VS VS. ज्यादा है। सो 3 VS के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो भी देखा गया कि ज्यादा है भाई। ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। नाउ ये कॉन्सेप्ट कैसे समझा जाए वेव नेचर से? क्या इसे समझ सकते हैं? नहीं सर. नो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि अगर वेव होता तो क्या होता? जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए था। जी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी उसी का काइनेटिक एनर्जी यहां पर हमें मिलना चाहिए था। यस? हाँ. अगर वेव होता तो कुछ ऐसा होता, I3 के लिए सबसे ज्यादा होना चाहिए था, I2 के लिए उसके बाद, I1 के लिए इसके बाद, बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। और वेव तो यही कहता है कि जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। और यहां पर देखो, यहां पर तो हमें ये नजर आ रहा है दिस एनर्जी इज नथिंग बट रिलेटेड टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। आर पीपल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यस सर. बताओ। सर बोलो जब बोलो बोलो। करंट मैक्सिमम होगी तभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका करंट का तो करंट क्या बता रहा है? करंट विल बी जस्ट टेल यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, है ना? करंट विल, करंट व्हाट इज करंट? चार्ज बाय टाइम, है ना? एंड चार्ज इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना? सो जिसकी करंट ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए थी अगर ये वेव होता तो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। द करंट इज हायर, this current is lower, this current is lower, but kinetic energy is same. The maximum kinetic energy for electron is same. तो यहां हम ये देख रहे हैं, क्या हम देख पा रहे हैं यहां पर? So we have just seen that energy is function of, किसका फंक्शन है? एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी.
frequency. Energy is dependent on frequency. Frequency. है ना, यहां हम ये देख रहे हैं. And current is dependent on intensity. Intensity. है ना, यही तो देख पा रहे हैं. एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड करंट, जो करंट है उस वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? करंट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी. Intensity. सॉरी, हाँ, करंट इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी. ओके, ये हमें दिखाई दे रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से. दिस इज अ वेरी सिंपल अरेंजमेंट, लेकिन ये अरेंजमेंट को एक्सप्लेन कैसे करें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हर्ट्ज के बस की बात नहीं थी इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना. फिर इस कॉन्सेप्ट को किसने समझाया? आइंस्टाइन ने समझाया. अब आइंस्टाइन ने देखो क्या किया, वो आप समझने की कोशिश करो. यहां तक क्लियर है ना? Yes, sir. ओके. सो आइंस्टाइन ने कहा कि भाई लाइट इज नॉट अ वेव. लाइट क्या है? वेव Wave. नहीं है. लाइट इज समथिंग which is made of photon and which is Photon. something like a particle. Yes, sir. Are you getting my point? अब उन्होंने कैसे समझने की कोशिश की? सपोज ये हमारा रेड लाइट, अब ये रेड लाइट है, ओके, और ये हमारा ब्लू लाइट. एग्रीड? सो दिस इज माय रेड लाइट, दिस इज माय ब्लू लाइट. किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ब्लू लाइट की. दिस Blue इज light. न्यू बी, और ये क्या है? न्यू रेड. नाउ आइंस्टाइन ने क्या कहा कि लाइट इज नथिंग बट दे आर मेड ऑफ अ पार्टिकल which is massless particle which is moving with the speed of light and its energy is something like a h into nu. So what you can say, there is n number of particles. You can imagine something like this. There is n number of particles. These all particles are what? Massless. So इसके अंदर भी n number of particles है. Okay. Now, so you can imagine something like this. You can imagine that its energy is what? This is also called photon. This is also called photon. और ये मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टिकल बनाया है आपको समझाने के लिए. ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा बड़ा पार्टिकल बनाया है. You can imagine like this. If frequency is less, then you can imagine its energy is also less. And what will be energy of each photon? H nu r. Nu r is what? Frequency of the red particle. And what is frequency of blue? And what is energy of blue? H mu b. And this number of these photons. So energy is identified as, energy will dependent on, according to Einstein, that is h nu, and intensity is proportional to number of photon. Intensity किसके ऊपर डिपेंडेंट है? Number of photons. Okay, and now you can see and here you have only this much of photon. So whose intensity is more? Red or blue? Red. Red, sir. Red. क्योंकि इसमें देख रहे हो बहुत सारे फोटोन है ना? Yes, sir. Sir, इसमें क्या है? intensity मतलब brightness ना? इंटेंसिटी में से ब्राइटनेस. ब्राइटनेस कब brightness, बढ़ेगी? जब बहुत ज्यादा फोटोन आएगा. आर यू गेटिंग माय Yes, sir. पॉइंट? Yes, sir. According to Einstein. Okay, not according to Maxwell. Yes, sir.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब Yes, ये sir. बताओ, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ठीक है? ऐसा कुछ होता नहीं है, ओके? सो नाउ यू कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ हाई इंटेंसिटी किसकी होगी, इसकी है या इसकी है? Red. Sir, रेड वाले की है। क्यों रेड वाले की ज्यादा है? Number of Number of photons ज्यादा है. photons नंबर ऑफ ज्यादा है। फोटोन ज्यादा है, ठीक है? एनर्जी किसकी ज्यादा है? एक पर्टिकुलर फोटोन की बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर फोटोन में किसकी एनर्जी ज्यादा है? रेड वाले की या ब्लू वाले की? Sir, blue वाली. Red. ब्लू वाले की, है ना? इसी कारण मैंने इसे बड़ा फोटोन दिखाया है, ओके? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. है ना? अब जरा तुम इमेजिन करो एक स्टोरी। सपोज एक नदी में एक नाव है ना? सो देयर इज अ बोट, एंड इस बोट को इस हाइट तक लेकर के जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस हाइट तक लेकर के जाना है, और आपके पास पिंग पोंग बॉल, जिसे टेबल टेनिस खेलते हैं, रिमेंबर? Yes, sir. पिंग पोंग बॉल है, और दूसरी तरफ उस यहां पर भी सेम बोट है, और उसको भी इस हाइट तक लेके जाना है। बोट है ये, है ना? सो देयर इज सेम बोट, ओके? सेम बोट है, ओके? नाउ अब यहां पर पानी है पूरा रखा हुआ, ओके? दिस इज वाटर। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, पिंग पोंग बॉल, मिलियंस ऑफ पिंग पोंग बॉल बोट इस पर, इस वाटर में मैं इस बोट पर मैं दे रहा हूं, मिलियन ऑफ पिंग पोंग बॉल। ऐसा पिंग पोंग बॉल समझ गए ना? टेबल टेनिस जिसे खेलते थे, हल्का वाला बॉल, Yes, sir. Yes, sir. है ना? सो मैं मिलियन ऑफ पिंग पोंग बॉल फेंकता जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फेंकते जाओ फेंकते जाओ फेंकते जाओ। बोट कभी हाइट तक पहुंचेगा? Nice. से यस या नो? No, sir. नेवर, No. नहीं पहुंचेगा। अब आप देखो, यहां पर एक मैं बड़ा सा पत्थर ला करके इसके अंदर डाल दूं, इस बोट पर मारूं, एक बड़ा सा पत्थर मारूं, क्या एक ही पत्थर से बोट ऊपर आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये चीज समझ में आ रहा है Yes, कि sir. आप Yes, sir. अगर छोटे छोटे पिंग पोंग बॉल से अगर 1000 भी फेंकते रहो, लगातार फेंकते रहो, तो कभी भी बोट इस हाइट तक नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट sir. इफ यू विल गिव वन हैवी स्टोन और एक हैवी कुछ लेकर के फेंकोगे, तो वो क्या होगा, वही आपको बोट को उठा करके यहां तक पहुंचा देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. सो दिस इज एग्जैक्टली सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। यहां पर क्या हो रहा है, अब देखो यहां क्या हो रहा है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी एनर्जी बहुत कम है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज वेरी स्मॉल काइंड ऑफ थिंग, वेरी स्मॉल पिंग पोंग बॉल काइंड ऑफ थिंग। सो उसे बोट को ऊपर निकालने के लिए तुम कितने भी बार फेंकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? सो दिस इज जस्ट लाइक दिस। लेकिन यहां इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि इस वैली में एक फोटोन भी इसके ऊपर आया, इट विल बी कम आउट। यस और नो? Yes, sir. भाई ऐसा ही तो होगा। कंचा खेले हो कि नहीं? नहीं sir. नहीं खेला है तो फिर लाइफ में किए क्या? कंचा तो खेलना चाहिए। खेलते हुए देखे हो किसी को? जी सर, देखें. देखे हो। सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल throw the marble ball onto another marble ball, that marble ball will immediately come out, isn't it? Yes, sir. या फिर वो टाइम लेता है, नहीं थोड़ा देर तक अभी और सुनता नहीं, रहूंगा फिर बाहर नहीं, जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, immediately. Just when you will kick, when you will strike it, it will go out of the range, isn't it? Yes, So sir. exactly same sir. type of thing is going to happen here. आइंस्टाइन ने बहुत ही माइंड ब्लोइंग थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि भाई लाइट इज नथिंग बट इट इज अ पार्टिकल, एंड दैट पार्टिकल इज नेम्ड एज व्हाट? फोटोन। उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? फोटोन Photon. कहते हैं। एंड द एनर्जी ऑफ लाइट विल डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू h nu. And what is intensity of light? The intensity of light will dependent on number of photon, that how many number of photons are there. So इस पूरे के पूरे लाइट की एक एक हर एक लाइट की, और
एक की एनर्जी क्या है एच न्यू, दूसरे की एनर्जी एच न्यू, इन सब की एनर्जी कम है लेकिन यहां पर एनर्जी ज्यादा है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं, दिस इज योर ब्लू लाइट, सो न्यू बी, इसकी क्या होगा, इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी और एनर्जी भी ज्यादा होगी, इजंट इट? यस सर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सो आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को दिया और ये थ्योरी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जस्टिफाई कर लिया। ओके, सो दिस थ्योरी विल जस्ट जस्टिफाई द फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी। ये मैं आपको कल की क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कैसे फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी को ये थ्योरी जस्टिफाई कर देता है। और हम देखते हैं जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा था आईवी कर्व का रिजल्ट, वो एग्जैक्टली मैच हो जाएगा यहां पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो जरा एक बार रिवाइज कर लो, मैक्सवेल ने क्या कहा था, बताओ। इंटेंसिटी पे एनर्जी डिपेंड करती वेरी गुड, एनर्जी नहीं, इंटेंसिटी और एनर्जी सेम थिंग है, और Same- दोनों same एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। हम्म। ओके, अगर वेव के थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता तो क्या टाइम लैग होता या नहीं होता? होता सर, टाइम लैग होता। होता, लेकिन हाँ ये क्या यहाँ पर टाइम लैग दिखा? नहीं। नहीं दिखा। अगर इंटेंसिटी के, अगर लाइट वेव होता तो आईवी कर्व कैसा होता? अगर लाइट वेव होता तो आईवी कर्व कैसा होता? ऐसा होता ना, यस सर, है कि नहीं? यस इसकी सर। इंटेंसिटी Yes, sir. I1, इसकी इंटेंसिटी I2, इसकी इंटेंसिटी I3, I3. ये VS1, VS2, VS3। अगर वेव होता तो ऐसा मिलना चाहिए था, जी सर। यस या नो? लेकिन ऐसा मिला क्या? नहीं सर। नहीं मिला, No, sir. ठीक है। मिला क्या? मिला कुछ ऐसा, एग्रीड है ना? यस सर। सबकी इंटेंसिटी सेम थी, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी उसकी एनर्जी उसकी एनर्जी ज्यादा ज्यादा। मिली, उसको रोकने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, उसको स्टॉप करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। तो ऑब्वियसली इसी कारण उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। अभी मैंने सब नाम नहीं दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, ये सब के बारे में कल समझेंगे। लेकिन आज आपने एटलीस्ट इतना तो समझ लिया कि आइंस्टाइन का थ्योरी क्या कहता है, इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? Number The frequency, of इंटेंसिटी, Yeah. नंबर ऑफ फोटॉन। photons, और एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन? frequency. frequency पे। फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गया ना? जी सर। Yes, अब कल की क्लास में इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे और इसके ऊपर प्रॉब्लम भी कर पाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो, थैंक यू। Okay.